medical doctor. So I am from Bangalore. I work for a Splash Hospital in Bangalore. Okay, thank you. We have anybody new? Everybody. Diptanshu, yeah, Diptanshu can maybe introduce. Yeah. Yes, Diptanshu, please introduce yourself. Are you here? Hello. एक minute ago, sorry. Hello. Yes. Yeah. Yes. So this is Diptanshu. Like I am currently studying in KIT University, second year, and also founder of ePrenier Network. So looking forward for the session. Okay. So what network? Can you repeat the name again, Diptanshu? Yes. What is your name of what network? name of Entrepreneurs Network, right? ePrenier Network. ePrenier Network. So if you can type out the URL on the chat, that'll be great. Yes. एक अपना website का URL या Okay. Yeah. in the chat room, chat box. Yes, Okay. yes, sure. Okay. I think other people are regular people only. Okay. We'll continue. I think. Okay. So first question is, which social media shall we use for different products? So is there any product specific social media that we should use? Okay. So yeah, maybe Diptanshu can speak. For your ePreneur network, whatever products you have, how you market over social media, your experience, please. Diptanshu, are you here? Yeah. Yes. So your experience, yeah. Yeah. So basically, what we are planning is it's a social networking media platform like LinkedIn or Facebook, but it's totally designed for entrepreneurs, startup owners, or budding startup owners, and also investor and mentors. So we are creating a platform for them where they can connect with each other and post their requirement and share their stories and all, so that one can react and like can collaborate with each other. So this is our idea behind that. So right now, what we are focusing is like promoting some of the startups and like sharing their success stories. And like we thought of launching our platform in May, but we cannot launch it right now because due to the lockdown, and I am the part of Kick Entrepreneurship Cell. So I am in collaboration with the Kick Entrepreneurship Cell. So when I will launch, that event will be held in collaboration with Kick Entrepreneurship Cell to launch this app. So like now I am waiting for that moment to like when the college will reopen and we can form a like official event and like we can launch this app. So right now, are you started any social media marketing of ePreneur or any event? right now we have not any focused on any social media marketing because firstly we are right now have not till now yet completed our like app and website. So we are in like under construction our app and backend and all. So till then we are not like officially launching it on our site and all. After all the like the demo part is ready, then we are thinking like to launch and like promote our app and all. Then officially launch it at Play Store and like can anybody can use it. So this is my target, like my views and like my future planning Sure. timeline. Sure. We'll come back to you. Diptanshu, I also looked you up on LinkedIn. You are also part of another startup I saw on your LinkedIn profile. Is it? Yeah. Yeah, like I am working with like too many like 2 to 3 startups. Co-learning.in and then Yeah, so colearning.in is a platform. Like it's a type of an academy or like
you say on school or like my captain and all. But here we are totally focusing on market management and like for startup owners and like for example when a budding startup owner like opens a startups and like uh, in his part he don't have much knowledge in legal activities and all like legal advisor नहीं होता है so what we are planning in our platform is like to get like a course from a legal advisor, okay, and like help them in their part like for marketing, also digital marketing course, then this legal advisory course and many more in this process. So we are also like right now have launched only a cat preparation course, and and we'll be launching the legal advisory course in this week. So this is what we are going on. Okay. Okay, thank you. Yeah, so we can connect with Diptanshu offline also. Okay, so coming to the question again, social media for different product. Saurav, you are here. Yes, Saurav. तो आपके product के लिए do you use all the social media or you focus on one social media more than the other? What's the rationale behind that? So for everyone's benefit, I have a company called Clear Dekho. हम चश्मा बेचते हैं. We have 50 plus outlets across India. So basically क्योंकि चश्मा एक ऐसा product category है जो एक बच्चा भी पहनता है, एक 20-25 साल का बंदा भी पहनता है और एक 40-50 साल का बूढ़ा भी पहनता है. And since entire India is on Facebook, so Facebook is the most prominent platform for us to market our product. So we keep doing a lot of social media activities we keep doing a lot of customer acquisition and sales oriented activities on Facebook. क्योंकि why I chose Facebook, because Facebook का customer acquisition cost over a period of time we have reduced it to maybe only 2 to 3 rupees. When we started off उस टाइम पे कैक जो था वो करीबन 50-50 रुपए भी हम खर्च करते थे एक कस्टमर को, क्योंकि कस्टमर को सिर्फ हम वेबसाइट पे लाते हैं, उसके लिए वी आर स्पेंडिंग 50 रुपीज और मे बी लेट्स से 20-30 व्हाटएवर रुपीज, लेकिन कन्वर्जन सिर्फ लेट्स से 1 out of 50 हो रहा है या 2-3 out of 50 हो रहा है. तो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट वाज वेरी हाई फॉर अस, बट नाउ वी हैव बीन एबल टू डू अ वेरी टारगेटेड मार्केटिंग because Facebook helps us to very specifically choose the age group, choose the location. So जहाँ पे हमारा presence अच्छा है, जहाँ पे हमने past marketing करा है, जहाँ पे हमारा store है, अब हम जो इतना segmentation और targeting जब कर लेते हैं, तो we have cracked the code and got the CAC reduced to maybe 2-3 or under 5 rupees. So yeah, so we use Facebook. Facebook Other is platforms the like first Twitter other- and LinkedIn. हाँ, Facebook के अलावा फेसबुक के अलावा वी फील कि जो बंदा लिंक्डइन में है वो फेसबुक पे है ही. सो सिंस फेसबुक इज अ यूनिवर्स ऑफ और अ सुपर सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स, सो जब मैं फेसबुक में कर रहा हूं तो आई डोंट नीड टू डू इट इन लिंक्डइन, बिकॉज मेरा कोई प्रोफेशनल प्रोडक्ट या कोई एंटरप्रेन्योरशिप प्रोडक्ट या कोई लर्निंग प्रोडक्ट है नहीं. सो मेरा जो टीजी है वो पूरा फेसबुक में है. सो आई हैव प्रेफर्ड Facebook over other platforms. Sure. So आजकल TikTok आ रहा है. one more- I have not explored. ठीक है, आएंगे उस पे भी. एक और क्वेश्चन सौरभ, when you look for these people who take your franchisee, those are the B2B deals. Those are the people who give you all these bulk deals. How you find these people? I mean, through Facebook only or through any other social media? So to be very honest, Facebook has not been the best medium for us in searching for B2B leads. But मैं LinkedIn prefer करता हूँ, but I've never run a paid campaign on LinkedIn. मैं जब कोई नया स्टोर खोलता हूँ, जब उससे पब्लिश करता हूँ, तो मेरे पास 300-400 लाइक्स आ जाते हैं, जिसके वजह से आउट ऑफ दोस 300 पीपल एटलीस्ट उस दिन जिस दिन मैं पोस्ट करता हूँ कम से कम 20 लोग मुझे अप्रोच करते हैं जस्ट टू फाइंड आउट व्हाट इज द फ्रेंचाइजी मॉडल.
So I've never done Inquiry a आ जाती paid है. campaign for on LinkedIn. I have run paid campaigns on Facebook for generating B2B leads or franchisee leads for us. And till date, I'll be very candid to you, I've just converted one out of them. But having said that, conversion एक हुआ है, लेकिन I'm sure awareness काफी को हुआ होगा. So मैं B2B को actually quantify कर नहीं पाया हूँ कि whether it has been a successful campaign for me or not. क्योंकि B2C लीड तो इमीडिएट मुझे पता चल जाता है कि आज उसने क्लिक किया, आज ही ट्रांजैक्शन हो गया. मेरा वैसे भी फ्रेंचाइजी कॉस्ट इज अराउंड 11.5 लाख. तो उसके लिए लोग को टाइम चाहिए टू टेक अप अ डिसीजन ऑफ स्पेंडिंग ओवर 10 लाख ऑफ इन्वेस्टमेंट. सो इमीडिएट रिजल्ट भी नहीं आता है. सो या, सो दिस इज व्हाट आई हैव टू से. Correct. नहीं, ठीक है. I think paid campaign is I mean is another way to get the leads, but it doesn't mean you get leads only by a paid campaign. Facebook पे भी, in fact, I mean, you might get inquiry just by a normal post, and because of that user base, I think 2 billion almost, right? It's like almost one third of the one third almost of the planet is on Facebook. Yes, Atul sir, you got to say something? 2.6 billion people, almost more than that on Facebook. Yeah. Other thing is ki target is very important. Ki your target audience might be on Facebook or might be on LinkedIn or might be on Twitter or might be on Instagram. So we have to know it. So if your product is targeted at everyone or consumer, it could be anyone, then you have to present on all the platform. And the other thing which I mentioned in the previous meeting is that these days all brands, companies, startups, individuals have to also learn about something called omni-channel, that you have to be present everywhere. You don't know where you are being looked at or where you're being searched at. So make it easy for the consumer or prospect to discover you wherever you are, because people will search for you in Google, and your image on LinkedIn is all fantastic, but your image on Facebook is not that great, or your image on Facebook is good, but दोनों के बीच में if there is some contrast, कि Facebook में आप you're saying something else and LinkedIn you're saying something else, or Twitter. So you have to be consistent across platforms if you want to be treated with authenticity, कि ये genuine है. Sure. Yes, Abhishek, you are here. Ajanta, yes. एक चीज, योर केस, जो तुम्हारा एलईडी का बिजनेस है, उसके लिए कस्टमर और डिस्ट्रीब्यूटर, I mean, have you ever used social media for this? ऐसी word of mouth से चल गया, like what is your experience? आवाज थोड़ा ये हो रहा है तुम्हारा. यस हमारा अभी ठीक है. हम तो फेसबुक को ज्यादा प्रेफर करते हैं मार्केटिंग के लिए, और दो किस्म अपने में बतलाना चाहेंगे. एक तो हो गया एम्प्लॉयमेंट या जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हायरिंग का हो गया, वो एक डिफरेंट प्रोसेस है. और मार्केटिंग के लिए जैसे इंडिया मार्ट हो गया, मेरे लिए जनरेट होता है अच्छा इंडिया मार्ट से, तो के लिए वो एक अच्छा है. बाद बोलते हैं न्यूज़पेपर एक अच्छा प्लेटफॉर्म है. और एम्प्लॉय हायरिंग के लिए आई थिंक क्या बोलते हैं, पहले तो वो कनेक्ट कीजिए कि आपको एक एरिया से स्टार्ट करना है, तो आपका रिलेटिव हो गया, मतलब जान पहचान का ही आदमी हो तो ज्यादा बेटर रहता है. क्योंकि आप किसी को अपना डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे रहे हैं, तो ये भाई एकदम और नॉन आदमी को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो आपके कंपनी को रिप्रेजेंट करने जा रहा है. और हम या कोई भी मान लीजिए कि मेरा कोई डिस्ट्रीब्यूटर शॉप पे जा रहा है, तो सबसे बेस्ट तरीका ये भी है मार्केटिंग का कि आप किसी एक शॉप वाला को लीडर, मान लीजिए कोई भी मार्केट होता है, वहां पे एज फॉर एग्जांपल एलईडी, वहां पे एलईडी का भी शॉप होगा. अब एक शॉप वाला को लीडर बनाइएगा तो वो अपने आप आपका मार्केटिंग करेगा. जिस तरह जियो का हुआ था, जियो में क्या हुआ था कि
कस्टमर ही उसका सबसे बड़ा एडवर्टाइजर हो गया था। हम जियो का सिम लिए, हम जाकर 10 आदमी को बोले, तो आप एक पर्सनल बड़ा शॉप को प्रोडक्ट सेल है उसी शॉप में होगा, लेकिन उसको अगर आप लीडर बनाते हैं तो वो ऑटोमेटिक आपका एडवर्टाइज करेगा। हेलो, यस, All good. Okay, Shivam, you have a comment, please, Shivam. Hello. Yes, Shivam. Yeah, can you hear me? Yes. Yeah, so basically, as I guess somebody says that it's about omni-channel. So I basically do digital marketing for some US-based businesses and Canada-based businesses. So basically, we call it as online reputation management, where we basically manage the reputation online wherever you will find the brand. Like for example, I'm doing it for an educational site, so we basically improve the rating, reviews, everything from scratch on each and every site. Like there's collegedekho.com, there's Career 360 or whatever it is. Apart from that, there's something we call as that Google business. There also that also matters a lot. So this is where we call it as online reputation management, basically. That's a very good point, Shubham. I wanted to comment on that. Many of the big brand celebrities, they definitely spend lots of money in the reputation management. Let's say I am a famous pop star, rock star, for writing negative things about me. So, like for example, very recently we had two pixel stars died. Rishi Kapoor, I'm a great guy. I mean, Irfan Khan, I'm a very famous person. But then I will also have many rivals. Many people who feel jealous about me, feel insecure about me. Many people who don't like me. So for them, the more famous you become, the more you're on the public radar all the time. So you have to be very, very careful about what people are talking about you across platforms. Exactly. Because if you don't know, then you are giving the control to your enemy or your rivals. So that's where reputation management comes in. Even if you get a negative comment, just to interrupt you, sir, even if you get a negative comment where we for example, I was doing I have a client in Boston. Okay, so he was actually running a restaurant over there. So what we he got some negative comments, which was not actually he didn't did it. So basically, we have to manage those comments also in a very positive manner, so that if a customers come into and check their reputation, that moment he doesn't feel like that this restaurant is something where we won't be getting the right quality of whatever services and whatever it is. Okay, so likewise. So you have to That's be a very good example, because people, even others can write some bad things, but if you have a reputation management effort, then the way you respond to that will further build your reputation positively. And the person who is trying to put trash about you or negative of the restaurant, people will stop trusting that. People know some bad guy, just somebody spamming you. So reputation management, you're right, is very important. Important to even rest famous company or brand gets into bad news for something. Let's say there's something bad. Some years back, something had happened. One of the most famous brands, I'm forgetting the name. Everybody uses it. Let's assume, for example, Unilever or Pepsi. If some bad things comes about Pepsi, that Pepsi, because of Pepsi, obesity is going up and all the bad effects of soda, then Pepsi Maggie. will like. Yeah, Maggie is a very good example. Nike had a very, very negative thing, and they managed it. They put a lot of money and resources behind to make sure that the reputation remains intact. Where we comes about like digital marketing, it's a huge kind of an ocean, but there's something called ads is there, something called is reputation management is there, now something called your social media presence. So there are a lot of things on this. So just talking about reputation management. So Atul, I want to point out, you talked about Rishi Kapoor. So
my understanding of Rishi Kapoor is different. He never thought about his reputation online. Whatever tweets and whatever kind of like even in his interviews, uh, whoever is taking his interview, he used to fear to ask questions. And um, at times he has also like there was a time he said that yes, I bought this whatever IFA award or whatever this award for 30,000 rupees, right? So, and again, I want to add one more example here for Zoom, the platform which we are using. In recent times, there was huge uh, bad words and all those things were going on, but still, after that only I think Zoom has increased the presence far better what it was having earlier after that negative publicity or whatever. So, what do you say about that? That's a very important good example, both Rishi Kapoor as well as Zoom. So let me talk about Zoom. So Zoom.us, I have been sharing about Zoom.us and all those entrepreneurship alumni platforms, and very often, especially the Desi platforms, Indian people will say, no, Zoom is a Chinese company. People will say, and some people will say Zoom is not secure, not safe. Then what I would do is I would share them the interview of the Zoom CEO Eric Yuan and how he explained and all the effort they're doing, and that gives the opportunity for Zoom to tell the world what are the type of things they're doing for more security, enhancing security. So Zoom really, one, it benefited a lot because of the whole COVID crisis, and also because of the sometimes bad publicity also is good as a publicity. So because of the bad publicity they got, they became famous. And after that, but just being famous is not enough. After that, then you have to put a layer on top of that as a good brand. You're a famous brand. After that, you want to make your reputation as a good brand, a reliable, secure, and trusted. So security and trust are the two, I would say, buzzwords. And privacy also. Security, trust, privacy. There are three things which brands like Zoom now, and similarly Google and Facebook and all the top companies, they spend a lot of resources on. They want to. Google, for example, is one of the most secure platform. But Google invests so much. Apple, another example. So Apple invests so much on the security that it's hard to literally hack into Apple by normal people, normal companies. So for some companies, the brand, their security, their privacy, these are the important characteristics. So reputation comes with what do you stand for? Who are you? Like if you are Rishi Kapoor, okay, great actor, and you are also into romantic films or diverse roles. Irfan Khan, completely different reputation. You have to understand your reputation, and then accordingly you have to hold your marketing and reputation management and overall branding strategy. So these days we can say like even sometimes negative publicity also improve your presence. Like if you specifically would talk about Zoom, there are a lot many people in India who never heard this word Zoom earlier. But after this whole controversy, now everyone knows that even like non-technical people know that there is a app Zoom which is there and we can use it for video conferencing and all. So Neeraj, on that, my point of view is that it has to be, if it comes out that is a planted publicity, then people will lose trust. Zoom did this because they wanted to become famous. No, it was a authentic weakness. Zoom was one of the secure platforms earlier too, but it had some vulnerabilities. And so you need to come across as an authentic brand. Zoom also came across, they said, we are not going to do any product development for the next few weeks, few months. All resources are completely on our security. So that conveyed a very good message that Zoom had said, we are not going to do anything else besides security and privacy now. Same thing, even Facebook also many times, because they were also becoming famous, they would invest a lot and we are spending so much resources on our security. And most of the big brands, they do that. If you expose yourself as vulnerable just because you want to be famous, then also people will find out, and later on people will lose trust you. So can I put up a point? Yeah, can I put up a point? Yeah, thank you. So just to quote on Zoom, basically what happened is, what I think is that from my point of view, it was a very like crucial time and there was a huge need of something like Zoom. So Zoom was able to capitalize on that. So what they did is they started
So like there were something like other apps also, but there was something like other apps also, but what happened is that Zoom was very much feasible for peoples, and there were some corporates already using Zoom, so they were much acquainted with that. So that's why Zoom created, like there was a huge need of something like what we call it as Zoom. So Zoom got famous, and this controversy comes later, like after the like people found that something is bad or something like that, whatever it is, and news media. I don't want to get into that. Basically, there was a So, need. So, so Shubham, yeah. one thing that happened due to the whole Zoom vulnerability was Zoom was more into the B2B market. But after that, Zoom became a family consumer market also there, because everybody, people started using Zoom for the family calls, friends and family calls, or not only business. That was another positive thing, the way it happened. So you are big in a B2B market, but now in B2B market, they already had major competition, like the Skype and WebEx and many other, they already major competition they had. But now, thanks to this COVID, thing, they reached out the homes of people. Individual customers also have started. Yeah. Mhm. Yeah. Yeah. Exactly. Yeah. So, Exactly. So I'm like, so what this boils down is social media management or social media marketing. It does a few things. One is just the marketing of the product. Another one is a brand management, and let's say a positive rebuttal of any negative branding that might have happened because of a genuine glitch, or let's say somebody complained or something. So these help in this is a feedback loop kind of thing. So if you get a negative comment, if you generate a positive rebuttal, then like Saurav was saying, Maggie, and there was dairy milk, and that's where Tata Nano failed. I think we discussed in one of the group discussion. Okay. So coming to more practical examples, Saurav, for you, do you ever get negative comments about your spectacles bought by consumer? How do you handle this with franchisee? So, so we have a B2C product and a B2B product. So B2C is कि हम चश्मा बेचते हैं, तो चश्मा is a medical product, and since it is related to medical, so यहाँ पे दुनिया में कोई ऐसा दवाई नहीं बना है कि आपने गोली खाया और आपका बुखार खत्म हो गया। दवाई के वजह से आपका बुखार खत्म हो सकता है, चश्मा के वजह से आपका आईसाइट इंप्रूव हो सकता है। Having said that, there is no guarantee of anything for these medical things, because it is not a finished good, it is not a tangible good. चश्मा बंदा आई चेकिंग करने आता है चश्मे की दुकान में, उसके बाद लेट्स से आई टेस्टिंग ही गलत हुआ। जब हमारा ऑप्टोमेट्रिस्ट इज द पर्सन हु चेक्स आई, तो जब ऑप्टोमेट्रिस्ट पहले तो कंप्यूटराइज आई टेस्टिंग होता है, उससे 90% एक्यूरेट पावर निकल जाता है। उसके बाद मैनुअल आई टेस्टिंग होता है, जिसमें वो एक लेंस एक एक करके डालता है, उसमें कस्टमर से पूछता है अब आपको कैसा दिख रहा है। इट इज लाइक जब आप रेडियो का फ्रीक्वेंसी आप 2 बार ट्यून करते हो, एक बार तो आपको 98 पता चल जाता है, फिर आप 98.3 करते हो उसका बेस्ट एक्यूरेसी और बेस्ट फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। तो जब हम वो बेस्ट फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, उसमें अगर कस्टमर ये बोलते हैं हाँ हाँ मुझे परफेक्ट दिख रहा है, तो उस बिलीफ पे हम फ्रीज कर देते हैं वो पावर, और फिर वो पावर 2 दिन में बन के उसे मिलता है। और लेट्स से मिलने के बाद ही कैन स्टिल कंप्लेन कि मुझे अच्छा नहीं दिख रहा है, आई माइट हैव अ हेडेक, एंड देयर कुड बी मल्टीपल रीजंस बिकॉज ऑफ व्हाई दिस हैज हैपेंड। सो since we are in a product segment where there is no 100% customer satisfaction, that is why 1 out of every 10 customers will have a complaint, and that complaint is very methodologically managed by the team. जो हमारी टीम है वो आइडेंटिफाई करती है कि क्या कंप्लेन है, देयर इज अ प्रॉपर रिफंड एंड रिटर्न प्रोसेस। Also, since we are talking about the subject is social media, we receive a lot of complaints on social media, because social media में कोई तारीफ तो करता नहीं है। इंडिया एक ऐसा कंट्री है कि अगर आप एयरटेल के भी पेज में चले जाओ, विच इज द बिगेस्ट टेलीकॉम प्लेयर ऑफ इंडिया, तब भी वहां पे सिर्फ आपको नेगेटिव कमेंट्स ही दिखेंगे। सो बाय डिफॉल्ट कोई तारीफ नहीं करता है, आपको बोलना पड़ेगा प्लीज अच्छा कमेंट दे देना। हाँ, और उसके लिए भी पे करना पड़ता है आजकल। तो having said that, we are living in this social virtual world where
people try to extract the maximum benefit. और आजकल कस्टमर बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गया है. वो जानबूझ के नेगेटिव कमेंट्स देता है ताकि उसे कुछ कॉम्पनसेशन मिल सके. इनफैक्ट कस्टमर्स हमें आर्म ट्विस्ट भी करते हैं कि अगर आप मुझे ये नहीं दोगे, लेट्स से कम दाम में या फ्री में, आई विल राइट बैड कमेंट्स बिकॉज ऑफ व्हाटएवर थिंग्स हैव हैपेंड इन द पास्ट. So there has to be an approach, and I think everyone is facing such time. अभी हमें पता चला था डोमिनोज का क्या भी हुआ था, and there are so many, ओला में, उबर में, बड़े बड़े ब्रांड्स, पेटीएम में, विजय शेखर शर्मा के ट्वीट्स में लोग ट्वीट करते रहते हैं कि यार मेरे को कैशबैक नहीं आया. नाउ दैट गाय इज $1 billion गाय, उससे आप यार ₹5 का कैशबैक के लिए थोड़ी बात करोगे. लेकिन ओयो का भी सेम हाल. हाँ, तो देयर हैज टू बी अ प्रॉपर प्रोसेस फॉर इट, एंड वी एंश्योर कि क्योंकि कस्टमर कंप्लेंट्स तो आएंगे, एंड सोशल मीडिया इज द मोस्ट ट्रांसपेरेंट एंड द easiest and the most effective way, and also the fastest way to reach the brand, क्योंकि nobody can afford to have negative comments. So लोग को पता है कि यार अच्छा ये बंदा मैनेजर सुन नहीं रहा है, चलो ट्वीट कर दो सीईओ को. तो we get tagged on a lot of tweets, but there has to be a process for it, and we have to live with it. There is no solution. Yes. हाँ, अभिषेक बोलो, कुछ बोलना चाहते हो? यस यस यस. तुमने भी कुछ नेगेटिव कमेंट दिया या मिला नेगेटिव कमेंट? नहीं, हम 2 पॉइंट पे बोलना चाहते हैं. ठीक है, फर्स्ट तो अभी जो शिवम जी शायद बोल रहे थे कि मतलब विजय शेखर शर्मा को कोई ₹5 के लिए एक कमेंट करता है, वो गलत चीज नहीं है. हो सकता है कि मतलब जो वो कर रहा है उसके अंदर वो गुस्सा हो, वो भड़ास हो कि मतलब मेरा ₹5 नहीं आया, ₹10 नहीं आया. क्योंकि मतलब ऐसा भी होता है कि एक कंप्लेन करने के बाद भी आपका एक कंप्लेन नहीं हो जाता है, तो कम से कम उसको एक कमेंट करके ही सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिल जा रहा है कि चलो भाई हम ₹5 के लिए वही उसको वो कमेंट कर दिया. और हो सकता है कभी वो नहीं तो उसका आदमी पढ़ भी ले, तो उसको तो थोड़ा सा फील होगा. और एक बात और बोलना चाहते हैं, जैसे बहुत सारा इस सिस्टम होता है 5 स्टार देने के लिए, ठीक है, फीडबैक टाइप का. इंसान 5 स्टार देते समय उतना नहीं सोचता है जितना 1 स्टार और 2 स्टार देते समय सोचता है. जब इंसान 1 स्टार देगा तो उसके अंदर जरूर कुछ होगा. एज फॉर एग्जाम्पल, आप उबेर से जाते हैं, 5 स्टार आप नॉर्मली दे दीजिएगा, लेकिन जिस दिन आप 1 स्टार दीजिएगा तो आपके अंदर कुछ तो मतलब लगा होगा. और सेकंड पॉइंट पे आते हैं, जो वो बोला गया कि मतलब क्या बोलते हैं, बैड एडवर्टाइजमेंट भी कभी कभी अच्छा हो जाता है. 2 आदमी का एग्जाम्पल दिया गया, तो बेस्ट एग्जाम्पल हम बताना चाहते हैं. मोदी जी अभी दिल्ली इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल को देखिएगा, एक बार नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया, क्योंकि उसको पता था कि मोदी को हम जितना गाली देंगे उतना ही मेरे को ही लॉस होगा, क्योंकि पब्लिक के अंदर ऐसा है. तो इस इलेक्शन में वो क्या किया कि एक भी बार पर्सनली मोदी का नाम नहीं लिया. तो वहां पे बैड गाली देने के बाद भी इफेक्ट पड़ता है. और सेकंड बोला गया ऋषि कपूर के बारे में, तो ऋषि कपूर मर गया, भगवान उसका आत्मा को शांति दे, लेकिन उसका कुछ ट्वीट ऐसा था जो मतलब आप जैसे गौ मांस खाते हैं हिंदू होकर भी, आपको उस चीज को ट्वीट करने का क्या जरूरत है? आप खाते हैं, आप अपने अंदर रखिए. आप जानते हैं कि इससे किसी का धर्म जुड़ा हुआ है, और एक धर्म ऐसा दुनिया में सेंसिटिव चीज कुछ नहीं होता है. लोग ऐसा है कि धर्म के लिए जान देते भी हैं और लेते भी हैं. तो आप उसको ट्वीट कर रहे हैं कि हम हिंदू होते हुए भी हम गौ मांस खाते हैं. तो मतलब डिपेंड करता है किस एस्पेक्ट में ठीक है. ये आई थिंक इसको मैं शिवम से पूछता हूँ. Yes, Shivam. So I think since you do like lot of brand management, social media marketing, digital marketing, I think the one thing, or maybe Saurav can also agree, कि social media marketing में one thing I think as a rule of a thumb we should follow is not to get into controversies. What do you think?
सी मतलब कंट्रोवर्सीज में ऐसा होता है कि वी हैव टू बी प्ले वेरी वेल, लाइक कभी कभार ऐसा रहता है कि वी आर इन अ स्टेज दैट मतलब इस साइड के वो पहचानते हैं एंड इस साइड को भी, सो वी हैव टू प्ले वेरी वेल ऑन दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड लाइक काफी डिप्लोमेटिक होना पड़ता है बेसिकली। ओके एंड यही है बेसिकली। अभी जैसे वो बोल रहे थे कि लाइक अरविंद केजरीवाल जी का जो कैंपेन था दैट वाज लाइक ब्रिलियंट। if you have seen the ad, like how Arvind Kejriwal comes in and he look through that door lens and then he get into your house and then there's an interface comes in, so that is brilliant. Like that I think that impacted a lot in Delhi elections. Okay, and not only that but like the various इसके बारे में मुझे एक्चुअली कुछ अच्छे अच्छे मतलब जो पीआर वगैरह जो करते हैं उनसे भी मुझे काफी कुछ ये आया था, सी दिस इज अ ब्रिलियंट एडवर्टीजमेंट डन बाय सम एजेंसी, सो दैट वाज देयर। एंड मैं बेसिकली इंडियन इंडियन क्लाइंट्स के लिए अभी तक तो ज्यादा किया नहीं हूं। अभी इंडिया में मेरा सिर्फ अभी हाल में मतलब आई जस्ट स्टार्टेड इन इंडिया एंड मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ इस पे। मेरा एक दोस्त है, स्कूल का क्लासमेट है, क्लास 6 से हम लोग साथ में रहे हैं, बहुत बड़े एड एजेंसीज में काम करता है, मलेशिया में है, बट ही एडवाइजेस द प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया एंड ऑल दैट, तो काफी बिग शॉट है। तो उन सबको भी चाहिए होती है अपने ब्रांड मैनेजमेंट और पब्लिसिटी के लिए। और what one thing I've learned is कि all politicians have this huge budget for their brand management, because उनका जो target audience है ना, let's say इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो 1.35 billion, they're all his potential customers, whether they buy from him or they don't buy, as in meaning giving a vote will be buying, not giving a vote or giving a vote to opponent will be actually a negative thing. So Mr. Trump has the 1.3 billion. Mr. Kejriwal has, let's say, दिल्ली का population कितना होगा, 1 करोड़ से कम ही होगा, let's say, तो that audience, तो इस बड़े audience के लिए बहुत बड़े बड़े ad agencies हैं, and they spend क्या नाम है, प्रसून वाजपेयी, आई थिंक वन ऑफ द टॉप एजेंसीज, जो एड एजेंसीज था, तो ही वाज वन ऑफ द टीम, जो बहुत सारे बड़े बड़े जो एड्स देखते हैं ना इन लोगों के लिए, तो उसके पीछे बड़ी बड़ी एजेंसीज यूज होती हैं। एजेंसीज मैं थोड़ा सा मैं उस दुनिया को जानता हूँ, द कंपनी लाइक पब्लिसिस्ट, ओमनिकॉम, इंडिया में ओगिलवी एंड मैथड, ये सारी जो बड़े बड़े एड एजेंसीज, एडवर्टाइजिंग कंपनीज हैं, तो दीज कंपनीज के बड़े क्लाइंट्स ऑब्वियसली पेप्सी, कोका कोला, प्रॉक्टर एंड गैम्बल होते हैं, बट आजकल उनके और भी बड़े क्लाइंट धीरे धीरे पॉलिटिशियंस होते जा रहे हैं, बिकॉज पॉलिटिशियंस के पास बहुत पैसा है, बजट है। बट हर प्रशांत किशोर, शांत किशोर, प्रशांत किशोर का हम उसका एक एग्जांपल देना चाहते हैं। हम उससे पर्सनली मिले हैं पटना में। वो एक चलाता है आईपैक करके, यूथ इन पॉलिटिक्स, ठीक है। तो उसमें एक दो बार मेरे को जाके मौका मिला, उसको देखे जो भी वो जैसे कि एकदम रूट लेवल पे काम करता है, एम्प्लॉय को हायर किया, आप एक एक घर भेजता है। हम अपने आंख से देखे और लोगों का समस्या है, मतलब उसके पास माइंड तो है कि कैसे लोगों का माइंड पढ़ा जाता है। लोगों वो एक ही चीज पे काम करता है, डेटा। मतलब बिहार का मान लीजिए कि आबादी है 11 करोड़, 12 करोड़ जो भी है, तो मतलब लगभग 80% घर को कवर कर लेता है कि लोगों का इस समस्या क्या है। उसके अनुसार मैनिफेस्टो को तैयार करवाता है। जैसे कुछ दिन पहले नारा दिया था कि बिहार में बहारे फिर से नीतीश कुमार, इस सब टाइप का। तो मतलब कैसे सोचता है, तो एक बहुत बड़ा मैटर करता है। मैं बोलूं अभिषेक, तो केजरीवाल का जो आईपैक है, पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, मैं अच्छे से उसको जानता भी हूँ, उसमें काम करने वाले लोगों को भी जानता हूँ। तो आईपैक
होता है पॉलिटिशियन, तो सेम मॉडल के साथ तो नीतीश कुमार के पास गया, ममता बनर्जी के पास भी गया, केजरीवाल, सबके पास गए, बिकॉज पॉलिटिकल कंसल्टिंग इज अ वेरी बिग बिजनेस। कंसल्टिंग हम लोग जानते हैं कि स्ट्रेटजी कंसल्टिंग और मार्केटिंग फना होता है, बट आज के जमाने में वन ऑफ दिस बिजनेस ग्लोबली, नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पॉलिटिकल कंसल्टिंग इज अ बिग बिजनेस। तो प्रशांत किशोर ने काफी नाम कमाया पॉलिटिकल कंसल्टिंग में, और एज अभिषेक सेड कि डेटा वाज अ की पार्ट, तो दे हैड अ ह्यूज माइक्रो लेवल डेटा एट द ग्रास रूट लेवल कि किस गांव में क्या है, क्या वहाँ के लोग चाहते हैं, उनका डेटाबेस भी काफी कलेक्ट किया था उसने। और मेरा एक्सपीरियंस इसलिए है कि मैं अब उस पे आता हूँ कि दिस गाय कॉल्ड घनश्याम तिवारी, बिहार का ही है। वो बेटर है, इसका बैकग्राउंड है कि मैकेंजी में काम किया, कंपनी में आया था, एजुकेशन का स्टार्ट होता है, गुड एट टेक। तो दिस गाय घनश्याम तिवारी ने क्या किया, उसने भी अपनी टीम बनाई, और उसने जाके नीतीश कुमार के लिए काम कर रहा था, बहुत सालों से कर रहा था, मतलब कि उसकी जो टीम है, कपिल गुप्ता उसके टीम में था, एक आईटी दिल्ली का। तो व्हाट ही गॉट डिसरप्टेड, एंड दैट्स अ डिसरप्शन का एग्जांपल है कि काफी अच्छा चल रहा था, पेपर में, टीवी, सब जगह न्यूज भी आया था कि कैसे हार्वर्ड से पढ़ा हुए लोग आकर बिहार में नीतीश कुमार कोई लोग को हेल्प किया, उनको इलेक्शन जिताया। उसी मॉडल को डिस्टर्ब किया प्रशांत किशोर ने। प्रशांत किशोर में जाके नहीं होता एक छोटा लाइन की जगह बड़ा लाइन खींच दो, तो प्रशांत कुमार सीधा लेके आया कि अपना यूज नहीं कि देखिए नीतीश जी, मोदी जी को तो प्राइम मिनिस्टर हम ही बनाए। तो अब पेपर में काफी न्यूज में काफी हेलो हेलो। Yes, Shivam. तो सॉरी, म्यूट हो Nothing, गया था। nothing. Just I हाँ could. हाँ, नहीं सॉरी, म्यूट हाँ. हो गया था। तो सॉरी, तो यूजिंग हिज सक्सेस स्टोरी इन द सेंटर इलेक्शन, Narendra Modi, Amit Shah and team, he used that as an example, and he disrupted the model of my घनश्याम तिवारी। तो once he goes to नीतीश कुमार, तो कोई भी एम्बिशियस आदमी क्या करेगा, देखेगा कि नहीं आपने बहुत अच्छा किया, तो व्हाट नीतीश कुमार टोल्ड टू घनश्याम तिवारी कि घनश्याम जी, आप प्रशांत किशोर जी के साथ काम कीजिए। लिटरली एक साथ में आपका सबसे बड़ा क्लाइंट जो था वो आपको बोल दिया कि आप अपने राइवल के साथ काम किए, मतलब कि लिटरली यू आर फायर्ड, और लिटरली आपका डिमोशन हो गया। तो उसके बाद ही मूव टू डिफरेंट बिजनेस स्टार्ट के बाद में, लेटर ऑन ही आल्सो फाउंड अ न्यू क्लाइंट, देन ही फाउंड अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव एज ए क्लाइंट। तो अगर आप लोग टीवी देखते हो इंडिया में, तो कोई भी न्यूज चैनल डिबेट आप देख लो, तो उसमें एक वन ऑफ द बेटर स्पीकिंग, बोलने वगैरह में काफी अच्छा है, धीरे धीरे बोलता है। तो ही इज द गाय जो कि अभी मुलायम, इनको अखिलेश यादव को, मतलब उनको भी डिफेंड करता है, और जरूरत पड़े तो ही इज लाइक पॉलिटिकल कंसल्टेंट, इज ए कंसल्टेंट, जो पैसा देगा उसके लिए काम करेंगे। Yeah. Yes, Shivam. You wanted to add something? So seems to me, the marketing is like the new job market का बड़ा skill that is going to be in demand a lot. Yes, Shivam. Then Ravi can speak. Yes, Rish, बताओ. Yes, so basically, lots and lots of marketing agencies and digital and social media marketing. One thing is that बहुत जन करते तो हैं. Like one thing they missed out is the strategy, the perfect strategy, and there are like different products. Like Facebook ad is a different product, Instagram ad is a different product, LinkedIn ad is a different product, search engine optimization and online reputation. So you need to make a ratio of those products in a proper way, and you need a now digital marketing is going vanishing out, and now what coming is data driven digital marketing is more coming in right now. So this is what we need to focus, and uh, as this Abhishek told, we these politicians have worked on most on the data. Actually, this is what is actually needed, and there's a much needed strategy for any kind of digital marketing. Just like you run an ad or something like that doesn't mean that you will convert huge lot of clients and that's all. Okay, but you need a good strategy basically, and a ratio of all the products in a proper manner. Sure. That's from my point. Yeah, sure. We'll come back again to this. Yeah, yes, Yeah. Mr. Ravi.
Are you here, Mr. Ravi? Okay. He'll be back later. Yes. So my question again to Saurav now. The same question actually. Like, do you really try to avoid from controversial topics as a co-founder? Yeah, you deliberately do controversial कि थोड़ा बदनामी में भी नाम होगा. मैं अभी इतना बड़ा और प्रचलित नहीं हुआ हूँ कि मेरे कोई पॉजिटिव कमेंट से या नेगेटिव कमेंट से मेरा उद्धार होगा या जो भी होगा. बट आई हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस. लेट मी टॉक अबाउट बॉलीवुड, क्योंकि मैं थोड़ा सेल्स मार्केटिंग का बंदा हूँ. तो बॉलीवुड में कोई भी मूवी रिलीज करने से पहले देयर इज ऑल सॉर्ट्स ऑफ पब्लिसिटी. अब जैसे पद्मावत जब रिलीज हुआ था, तो जो भी ऑपोजिशन आया, जिस भी पार्टी से, लोकल पार्टी से, बड़े लेवल के पार्टी से, वो सब का जो नेगेटिव पब्लिसिटी था, उससे कंपनी ने ही 300 करोड़ किए. So as a consumer, as an audience, I was more interested कि अरे यार वो क्यों पार्टी, why is party against this kind of movie, तो मैं भी जाऊंगा. So many times it helps, many times it doesn't help. So one has to be very smart to do. बहुत सारे actors जो होते हैं वो अपनी, क्योंकि they are not doing any kind of movie right now and they are sitting at home, they might come up with a negative PR activity. So, और ये जो PR है, ये मैं बोल तो रहा हूँ, ये पूरा वर्ल्ड बहुत ज्यादा कंटामिनेट हो गया है. हाँ, वर्चुअल तो है ही. एंड हाँ, मतलब पीपल आर यूजिंग इट टू देयर बेनिफिट्स. बट इसमें फायदा किसका हो रहा है? एज अ ब्रांड ओनर आई कैन से कि इफ योर प्रोडक्ट इज नॉट गुड, तो फायदा सिर्फ गूगल और फेसबुक को और टिकटॉक को हो रहा है. अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तब तो आपको जरूरत नहीं है, पर अगर आपका प्रोडक्ट बेकार है या इट इज नॉट अप टू द मार्क, तो आप सिर्फ पैसा दिए जा रहे हो फेसबुक को, गूगल को, और टू एक्वायर मोर एंड मोर कस्टमर्स. और एक चीज याद रखिए, कस्टमर इज नेवर लॉयल. आप 10 रुपए का दे रहे हो, जैसे ही उसे 9 रुपए वाला ब्रांड मिलेगा वो उधर शिफ्ट हो जाएगा. हम सबको पता है कि आज हमें टिकट बुक करना होता है तो हम एक माई ट्रिप भी खोलते हैं, गो आईबीबो भी खोलते हैं, ईज माई ट्रिप भी खोलते हैं, जहां से सस्ता मिलता है हम वहां से लेते हैं, क्योंकि हमें तो इंडिगो से जाना है. सिमिलरली आज हमें एक मोबाइल फोन खरीदना है तो हम फ्लिपकार्ट पे जाते हैं, स्नैपडील पे जाते हैं, अमेजन पे जाते हैं, जहां से सस्ता मिलता है वहां से लेते हैं. सो it has become very competitive and brands are throwing money for customer retention and customer acquisition. So Sorry, we should focus on product. What you said, customer is not loyal, is probably more true for a product. For the services, they are a bit more loyal than a product based company. हाँ, मतलब मैं जनरल रिमार्क नहीं मार रहा हूँ, मतलब नहीं ठीक है, वो मतलब फॉर द सेक ऑफ एवरीवन आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि लेट्स से लाइक उबर ओला भी है, लाइक 5 रुपए शायद कम मिलता होगा, 10 रुपए कम मिलता होगा, बट नाउ एट टाइम्स पीपल विल थिंक कि नहीं ये नहीं लेना है क्योंकि इससे मेरा अच्छा एक्सपीरियंस. मैं जनरली ई कॉमर्स की बात कर रहा हूँ. हाँ, नहीं, उसमें मैं बोलूंगा कि कॉस्ट टू स्विच वो भी एक फैक्टर. एक बार फंस गया तो उसके बाद मुझे स्विच करने में किसी और नए ब्रांड में थोड़ा डिफिकल्ट होगा. फिर मैं मतलब एप्पल ब्रांड से मुझे ड्रॉइड वाले ब्रांड पे जाना है तो मुझे उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा. या एक बार मैं उबर या ओला जैसे सिस्टम में आ गया, मान लो कि मैं एज ए पैसेंजर डजंट मैटर, बट लेट्स से आई एम द ड्राइवर, तो ड्राइवर को एक बार उबर पे आ गया तो फिर ओला उसके लिए मतलब कि उतना सूट नहीं है. तो cost to acquire customers and उनको retain करने के लिए companies also put all those tentacles. It becomes very hard for customers switch. Apple is the best example in the world. कि Apple और Amazon भी, Amazon और Apple ने कि इन लोगों ने customers को अपने loyalty के लिए इतना अपने पे dependent बना दिया कि जो भी चाहिए आपको मिल जाएगा. Amazon.com पे आपको सब कुछ मिल जाएगा. And they want to make sure that people don't even look at any other website, any other e-commerce website or any other website. Everything is available on Amazon. So Amazon is a great example for that. Correct. I think for me personally, I didn't want to switch to another app, compared to Zoom. जितना भी बोला लोगों ने. Yes, Mr. Ravi.
And then Abhishek can speak. Yeah, Mr. Ravi, are you here or? Yes, yes. Yeah. So quickly, I would like to put 2 points. I raised my voice, but got disconnected in between. Okay. So one point I would like to put on Prashant, we talked about. Okay. So Atul sir, what told is absolutely right, but there are some things which are not mentioned. Okay. See, Prashant Kishore, who came in with Gujarat elections initially in the year 2012. Okay. The purpose of his visit was Narmada Dam. Okay. The promotion was going for the Narmada Dam, and he visited in India. He was McKinsey guy. Okay. He was working McKinsey at that time, and he visited India for that project. There was some task which was, and he visited with one of IPS officer in Gujarat for that project. Okay. And then he got recognized with respect to Amit Shah, and then he took him. That conversation, one single conversation, given the chance to work with Amit Shah for the campaign, and he coordinated that campaign, executed that campaign, and then he got the name in that way. And then in 2014, he did the campaign for the Narendra Modi. So up to that time, it was going fine with Narendra Modi, but Prashant Kishore is as same as Arvind Kejriwal, who is much more ambitious in their role, in their perspective, in their life career. So Prashant Kishore, the main objective was him to come into political advertisements or campaign was to get a lateral entry into the Indian administrative services. And he was the one who proposed this proposal to Narendra Modi at that time. There should be lateral entry into the Indian administrative services. That was being discussed but was not implemented by Modi, which made Prashant Kishore to refrain from BJP. And at that time, Mr. Verma from Bihar, who had interactions with him in Delhi, who took him to Nitish Kumar, because at that time Nitish Kumar got breakup with the BJP, and he was looking for somebody who can be promoted his campaign. And there Nitish Kumar promised, I will give you space in the party itself, rather than being a campaigner, you will be in my party. And then he took him in the party, he made him president in the JDU. And then people who were there, they didn't like it, because it is always said lateral entry will never be accepted in Indian administration or else politics. So people who were associated with Nitish ji didn't like him making suddenly as a president. And then again, things started getting shore up with Nitish in the Bihar. And then he got up Mr. Kejriwal finally into the elections of right now Delhi. So this is how he moved. In between, he was also interacting with UP elections. Okay. So, but that was not full-fledged. He was taking care of, but he was interacting with Akhilesh for the UP elections as well, but unable to do it. But the election, again, he did it completely. And now he's in charge of forming a complete individual party, which Abhishek, Janata Group, Abhishek was talking about. Now he is looking to have a self-made party, which he got a clue from, again, Arvind Kejriwal. So his main ambitions was to make a lateral entry into the Indian administrative services. Okay. Yes, Abhishek. Yeah, Atul sir. तो मेरा ये कहना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वाज नॉट द गोल इन माय व्यू, इट वाज ही वांटेड पावर के लिए इंडिया में वन वे इज पॉलिटिक्स, अदर वे इज गोइंग टू एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस. तो मुझे किसी को पावर चाहिए, पैसा चाहिए. So that was his point. Like, see, people who are there in administrative services who do not know one segment, and tomorrow if he get transferred to other segments, he become boss for that segment. Whereas he do like he used to say like एक जो IPS ऑफिसर है आज पुलिस डिपार्टमेंट को देखता है या फिर कोई जल डिपार्टमेंट को देख रहा है. नहीं, तो उसमें क्या है ना कि किसी को कुछ चीज ड्राइव करती है, पावर, पैसा, प्रसिद्धि, सारे पीस कोशिश कर रहा हूँ. तो पावर अगर किसी को चाहिए, फॉर गुड और बैड डजंट मैटर, पावर चाहिए. बहुत बड़ा नशा होता है बिहार में, और ज्यादा बिहारी लोग को और ज्यादा, बहुत ज्यादा नशा पावर का. तो प्रशांत किशोर भी बिहारी है, नीतीश कुमार भी बिहारी है, लालू यादव बिहारी है, इन सारे लोगों को, अभिषेक भी है, अपना जनता भी बिहारी है. तो पावर का नशा बहुत ज्यादा होता है बिहार में फॉर सम रीजन. और आज से नहीं, 5000-7000 साल से, चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने से, चाणक्य के जमाने से. तो ये पावर का जो नशा है ना,
वही बीमारी प्रशांत किशोर को भी थी, वही बीमारी आज मैं उसके जो राइवल बता रहा हूँ घनश्याम तिवारी को भी, और भी लोगों को। तो दैट इज हाउ व्हाट दे डिड। उसके लिए प्रशांत किशोर, बट केवल आपको ड्रीम होना इनफ नहीं है, यू नीड टू हैव अ स्ट्रेटजी फॉर दैट एंड यू नीड टू हैव दिस राइट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस फॉर दैट। तो ही वाज स्मार्ट इनफ कि उसने नर्मदा योजना के थ्रू एंड व्हाटएवर चैनल्स ही चोज, किसी तरह से अपना रास्ता उसने बनाया, and he's a successful man. तो आज we all can criticize him, disagree with him, but at the end of it, in his field, he made a mark for himself. He's a very ambitious, successful. और उसने political consulting को इतना अच्छा segment बना दिया consulting world में कि इंडिया के ज्यादातर जो MLA, MP, chief minister candidate, prime minister candidate, they all learned the lesson. पहले भी होता था बट थोड़ा थोड़ा पर्सनल एफर्ट पे होता था, या पार्टी की तरफ से होता था कि बीजेपी का पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, कांग्रेस का स्ट्रेटजी है, या टीम है, बजट है। अब उसने इस चीज को थोड़ा सा इसने एक इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया कि एक अलग सेगमेंट क्रिएट कर दिया। पहले वो लोग क्या करते थे, बड़ी बड़ी पार्टीज कंसल्टिंग कंपनीज के पास जाते थे, मैकिंजी और BCG और डेलॉयट, उनके लिए वो लोग भी करते हैं कंसल्टिंग, बट इन्हें एक नया सेगमेंट क्रिएट कर दिया काफी बड़ा पॉलिटिकल कंसल्टिंग का। और उसके लिए मैं एक यूएस का एग्जांपल दूंगा, क्योंकि मैं यूएस में हूँ, यहाँ पे भी बहुत पुराना मार्केट है। तो जो भी प्रेसिडेंट होता है, तो प्रेसिडेंट के पास एक टीम होती है, उनका जो पॉलिटिकल जो टीम होती है ना, तो दे गेट हायर्ड फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस, बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनीज, मैकेंजी से या हार्वर्ड से या जहां से भी उनको बेस्ट लोग, एंड दे हैव अ बजट, उनका बजट ऑफिस होता है प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट का, एंड दे मैनेज द सेम स्ट्रेटजी। उसी मार्केट को वहां से ही सीख कर, क्योंकि वो यूएस में पढ़ाई किया, तो वहां से ही उसी मॉडल को अडॉप्ट करके बहुत सारे कंट्रीज में अडॉप्ट किया गया है। तो यूएस में भी, बाकी कंट्रीज में भी, बट यूएस चूंकि सबसे बड़ा मार्केट है मतलब इकोनॉमी वाइज, तो यहाँ पे पॉलिटिकल कंसल्टिंग बहुत बड़ा बिजनेस है, एंड इट्स आल्सो कॉल्ड एज एक इसके लिए इज्जतदार नाम भी दिया गया, उसको बोलते हैं लॉबिंग। बाकी जगह इंडिया में कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई करता है तो बोलता है कि अच्छा वो तो घूस दे रहा है, ब्राइबरी कर रहा है, इन्फ्लुएंस यूज कर रहा है, ये कर रहा है, उसको करप्शन, बट यहाँ पे उसको एक अच्छा सा नाम भी दे देगा, लॉबिंग। लॉबिंग का बजट होता है, वो बजट एनीबडी कैन गो एंड लुक कि रिपब्लिकन पार्टी का कितना बजट है, या हर यहाँ के सेनेटर का पता चल जाएगा कि किससे उसको कितना पैसा मिला, किसको कितना पैसा दिया। कुछ तो ऊपर वाला, नीचे वाला ब्लैक मार्केट वो भी ऑपरेट करता है, बट every political candidate has to declare their financial budget and stuff like that. And इंडिया में भी एक काम इसमें बहुत अच्छा काम किया, मेरे IIM अहमदाबाद के प्रोफेसर है, बैंगलोर के डायरेक्टर भी बने थे शायद, त्रिलोचन शास्त्री, और उन्होंने एक काम किया, और वो काम आज भी याद आ रहा है। हर नेता के बारे में, इफ यू वांट टू नो कि उनका क्या पर्सनल वेल्थ क्या है, उनका इनकम क्या है, बजट क्या है, घर क्या है, तो सबका myneta.info, कोई उनका वेबसाइट त्रिलोचन शास्त्री और कुछ प्रोफेसर सब लोगों ने मिलकर बनाया था। तो एनी नेता यू वांट, उनका आपको पूरा बायोडाटा, उनका फाइनेंशियल सब कुछ मिल जाएगा। तो इंडिया में भी पॉलिटिक्स काफी उस लेवल पे आ गया है कि कंसल्टेंट्स यूज होते हैं, एंड दैट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर यंग जनरेशन। इफ एनीबॉडी हैज इंटरेस्ट इन दैट, आई वुड से गो फॉर इट। यस, अभिषेक बोलो। हम बोलना चाहेंगे कि जैसे इसमें ये क्या होता है, जो आदमी ब्रांडिंग करता है वो एक गलत क्या करता है कि वो मतलब किसी का नाम बेचने लगता है, वो कुछ समय के लिए उसको अच्छा लगता है। एज फॉर एग्जाम्पल मेरा बल्ब का है, हम अब गांव में ये बेचने आ रहे हैं, तो ये बोल सकते हैं कि मेरा प्रोडक्ट कोलकाता का टॉप शॉप में सेल हो रहा है। एक बार कोई मेरा ले भी लिया, अब उसी का नाम बेच के चल रहे हैं। जैसे हम दिल्ली से स्टार्ट करते हैं, कुमार विश्वास को, कुमार विश्वास अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत कुछ किया था, और जब राज्यसभा का बारी आया तो ओ 2G को बैठा दिया, दोनों गुप्ता जी को। तो वो कुमार विश्वास एक लाइन बोला था कि मेरी कमाई की मलाई खाने वाले कुत्ते भी आज शेर पे भौंक रहे हैं। ठीक है, तो वही हाल प्रशांत किशोर का भी है। मोदी का नाम बेच कर वो काम ले लिया कि नीतीश कुमार से कि हम मोदी को OPM बनाए हैं, तो उसको नीतीश कुमार से काम मिल गया। अब नीतीश कुमार का नाम बेच कर अरविंद केजरीवाल से ले लिया, और अरविंद केजरीवाल का नाम बेचकर अब ममता बनर्जी से ले लिया। तो आई थिंक
ज्यादा दिन तक चलने वाला है नहीं। अभी देखिए प्रशांत किशोर का एक क्रेज धीरे धीरे डाउन होने लगा। सुनते हैं कि एक दो जगह से उसे काम रिटर्न भी ले लिया गया है। तो आई थिंक आप किसी का नाम बेचकर गलत ब्रांडिंग करके ज्यादा दिन तक मार्केट में नहीं रह सकते हैं। आज वो देखिए जब वो थोड़ा पॉलिटिकल जा रहा है अभी इसको लाते हैं वापस लाइन पे। सो एक चीज है, देयर इज वन क्वेश्चन इज देयर, पेड एडवर्टाइजिंग, राइट? So determining the, I think this can be for politics also as well as for the startups companies. So there is a ad budget and there could be some discount budget, let's say, ठीक है? तो सौरव से ही पूछते हैं, I think you are in the sales. So let's say कि अगर आपने अपने 1000 रुपए 10,000 रुपए अगर बजट रखा है मार्केटिंग का, do you think कि part of it go as a discount, or like what kind of discount versus social media marketing can go in this like flash sale and things like that? So I've worked with Paytm in the past. I've worked for 2 years in Paytm, or Paytm is one of the biggest e-commerce company and it is known for giving cashbacks, which is a form of discount. So Paytm क्या करता है, या फिर Paytm नहीं, brands क्या करते हैं with Paytm? For example, आपने देखा होगा कि लेस चिप्स का पैकेट 10 रुपए का आता है और उसमें लिखा हुआ है लेट से 5 रुपए कैशबैक मिल रहा है। So this 5 रुपए is actually funded by Ruffles Lays and not by Paytm. Initially when Paytm started, तब हाँ उसका कुछ मार्केटिंग बजट था and to acquire the customers वो फ्री में कैशबैक बांट रहा था, but over a period of time सारे brands started using this money. So instead of giving discount में उनका टॉप लाइन हिट होता है। तो फॉर एग्जाम्पल रफल्स लेस को अगर 5 रुपए का डिस्काउंट देना है तो उसको उस रफल्स को सिर्फ 5 रुपए मिला, बट अगर मैं 10 रुपए में बेच के कस्टमर को 5 रुपए का कैशबैक दे रहा हूं तो मेरा टॉप लाइन 10 रुपए ही रहा और मेरे मार्केटिंग बजट से 5 रुपए पेटीएम को जा रहा है, विच इन टर्न इज गोइंग टू द कस्टमर। सो आजकल जो कॉन्सेप्ट है वो जीएमवी का हो गया है, जिसमें एवरी स्टार्टअप इज एक्चुअली चेजिंग अ टॉप लाइन, क्योंकि स्टार्टअप्स आर यूजुअली फंड्स डिपेंडेंट। सो ऑल ऑफ अस आर चेजिंग टॉप लाइन और बॉटम लाइन का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, आई सी आजकल के जितने स्टार्टअप्स हैं, इंस्टेड ऑफ गिविंग डिस्काउंट्स लोग कैशबैक देना शुरू कर रहे हैं टू प्रिजर्व द टॉप लाइन। सो ऑब्वियसली ये जो दिस इज डिस्काउंट इज पार्ट ऑफ द मार्केटिंग बजट। Okay, so I mean it's just redistributing of numbers, right? I mean इधर से ले आखिर अकाउंट में अगर कैश फ्लो देखते हैं तो वही है ना, वो तो मैंने बस बोल दिया कि चाचा को इतना दिया, मामा को इतना दिया, चाचा मामा आपस में क्या किया पता नहीं, लेकिन एक्चुअली जेब से जा रहा है, बट द बेनिफिट यू गेट इज कि आपका टॉप लाइन इंटैक्ट है। तो इफ यू आर चेजिंग अ रेवेन्यू टारगेट, आपको साल का 10 करोड़ करना है तो 10 करोड़ अचीव हो गया, पर अगर आप 10% डिस्काउंट देते तो आपका सिर्फ 9 करोड़ अचीव होता। इस केस में आपने 1 करोड़ कैशबैक के फॉर्म में बांट दिया। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई वांट टू कम अप विद अ ऑफर जिसमें मैं फ्री चश्मे बांटना चाहता हूं, तो या तो मैं चैरिटी में दे दूं, एक एनजीओ को जाके 10 चश्मे बांट लूं, उससे मेरा टॉप लाइन तो बढ़ेगा नहीं, मेरा पीआर हो जाएगा। पर अगर मैं दोनों चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं पेटीएम को पैसे दूंगा और 100% कैशबैक चला दूंगा। तो आपको याद होगा कि पहले जब एयरटेल वेटेल जब आए थे तो ये लोग पेटीएम 100 रुपए कैशबैक बांट रहा था, 100 रुपए के रिचार्ज पे 100 रुपए कैशबैक बांट रहा था। हमने भी चश्मे 100 रुपए पे 100 रुपए कैशबैक दिया और खूब सेल हुआ हमारा। तो एक्चुअली हमें टॉप लाइन भी हो गया और मार्केटिंग बजट से चला गया, और आपको दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है कि आपका मार्केटिंग बजट क्या है क्या नहीं, आपने अपना टारगेट अचीव कर लिया, व्हाटएवर इज गिवन बाय द इन्वेस्टर्स। करेक्ट, एंड एक स्टिकीनेस भी मेंटेन हो गया है क्योंकि कैशबैक है, ऑब्वियसली वो कस्टमर वापस आ रहा है एक बार, एटलीस्ट एक बार और। सो स्टिकीनेस का कॉन्सेप्ट दो चीज में होता है। वॉलेट एक्चुअली दो, मतलब मैं थोड़ा सा डिवेट कर रहा हूँ। वॉलेट तीन तरीके का होता है, एक होता है क्लोज वॉलेट, एक होता है सेमी क्लोज वॉलेट, और एक होता है ओपन वॉलेट। ओपन वॉलेट इज समथिंग लाइक बैंक, जिससे आप पैसा निकाल भी सकते हो और बैंक में डिपॉजिट भी कर सकते हो। क्लोज वॉलेट होता है समथिंग लाइक जोमैटो वॉलेट। उस वॉलेट में अगर पैसा है तो आप सिर्फ जोमैटो के ऐप पे ही वो वॉलेट यूज कर सकते हो, उसमें स्टिकीनेस का फंडा आता है, विच यू आर रेफरिंग विशाल। जो सेमी क्लोज वॉलेट होता है, पेटीएम इज अ सेमी क्लोज वॉलेट, है तो वो पेटीएम में, लेकिन आप उसे मल्टीपल वेबसाइट्स में यूज कर सकते हो, जैसे बुक माई शो में भी यूज कर सकते हो, क्लियर देखो में भी यूज कर सकते हो,
कहीं जहां पे भी पेटीएम वॉलेट इंटीग्रेटेड है वहां पे भी यूज कर सकते हो। तो जो स्टिकनेस का फंडा है दैट इज रेलेवेंट इफ यू हैव अ क्लोज्ड वॉलेट। तो कस्टमर doesn't have a choice but he will have to spend that money only in that particular app. तो if Zomato wants to give a cashback to its customer, तो वो कस्टमर को 5 रुपए कैशबैक दिया, वो 5 रुपए कस्टमर Zomato ऐप पे ही कंज्यूम कर पाएगा। पर एज अ पेटीएम मैं उसे वो कैशबैक दे रहा हूँ, लेकिन मैं वो बुक माई शो भी यूज कर सकता है, वो Zomato भी यूज कर सकता है, स्विगी भी यूज कर सकता है और मल्टीपल अदर थर्ड मर्चेंट प्लेटफॉर्म्स यूज कर सकता है। करेक्ट, ओके। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग? इसमें अतुल सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? डिसएडवांटेजेस, क्या डिसएडवांटेज हो सकता है पोटेंशियल? तो डिसएडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया ये है कि आपका अपना वेबसाइट है तो आप यू कंट्रोल द मैसेजिंग, वह सोशल मीडिया गेट्स वायरल वेरी फास्ट। तो जो एडवांटेज भी है वो डिसएडवांटेज भी हो सकता है कि समटाइम यू आर लूजिंग द कंट्रोल। एनी ABC XYZ कैन पुट एनीथिंग अबाउट ऑन योर प्लेटफॉर्म। आपके ट्विटर अकाउंट को लोग टैग करके कुछ भी आपके नाम पे, बहुत सारे लोग जो मेनी पीपल हु डोंट लाइक लेट्स से एनी बिजनेसमैन और एनी पॉलिटिशियंस, आप देख के बहुत ज्यादा स्पैम उनको मैनेज करना पड़ता है। दैट्स वन। एंड लाइक anything is very easy to do, so the cost of entry is very low, so your competition is the whole world. दुनिया के almost 2.5 billion लोग या 3 billion लोग सोशल मीडिया पे मतलब इंटरनेट पे हैं, तो everybody has an opinion and everybody has an access, so your competition also expands completely. And if you don't have enough budget or enough resources and expertise, then sometimes it can go out of your control because you are a small brand or a small startup. And sometimes if some big person or big brand or big person is your rival, they can literally kill you or swamp you or defame you, as earlier somebody was saying, कि आपके ब्रांड को लोग बदनाम कर सकते हैं, आपको भी और आपके ब्रांड को भी, और आपके पर्सनल ब्रांड और आपके सोशल मीडिया ब्रांड में भी कभी कभी मिक्सअप होता है। तो वही एंटरप्रेन्योर है, जैसे अभिषेक जनता। अब अभिषेक जनता अभी जेफ बेजोस और बिल गेट्स तो बना नहीं है, तो अभी देख जनता का ब्रांड जो है, जनता ब्रांड का, वो अभिषेक के ब्रांड से भी काफी लिंकेज है। तो अभिषेक का जो सोशल मीडिया है, अभिषेक का फेसबुक है, अभिषेक का लिंक्डइन, अभिषेक का ट्विटर, उस पे अगर कोई अभिषेक के बिजनेस से जेलस है या राइवल है, तो वो अभिषेक को भी बदनाम करने की कोशिश कर सकता है। दैट्स द डिसएडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया। Okay. Adding one more thing, there is this buying likes, buying views, buying like fake followers. That has also become a side business for a lot of social media people. I think even for personal branding and things. इसको थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं। I think सौरभ से ही पूछते हैं। यस अभिषेक, पहले बोलो। हाँ, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जैसे एज फॉर एग्जांपल फेसबुक एडवर्टाइजमेंट ले लीजिए। पहले फेसबुक एडवर्टाइजमेंट को लोग गौर करता था, लेकिन आजकल उसमें क्या है कि बड़ा से बड़ा ब्रांड भी कर रहा है और एक छोटा से छोटा ब्रांड भी, मतलब उसमें किसी के लिए एडवर्टाइजमेंट के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एज फॉर एग्जांपल आप टीवी का एडवर्टाइजमेंट एक कराते हैं तो वो हाई कॉस्टली होता है, तो उसमें सारे ब्रांड नहीं करा सकते हैं। पर फेसबुक में क्या है कि आपके पास 500,000 रुपया भी है तो आप अपना फेसबुक पे ऐड डाल सकते हैं जो टीवी पे नहीं डाल सकते हैं। तो इतना ज्यादा निगेटिव चीज आने लगा है फेसबुक पे कि मतलब उसका ज्यादा बेनिफिट नहीं होता है, लोग इग्नोर करने लगते हैं। जैसे आप फेसबुक यूज करते हैं, मैक्सिमम चीज को आप देखकर इग्नोर कर देते हैं कि क्योंकि ऐसा केस होता है कि दिखता कुछ और है, खोलिए उसमें कुछ और ही रहता है। तो मतलब नेगेटिव ब्रांडिंग बहुत ज्यादा हो रहा है ये सोशल मीडिया का, क्योंकि उसका एक ही रीजन है कि उससे कोई भी जुड़ सकता है। आपका एकदम थर्ड ग्रेड का भी प्रोडक्ट हो, लेकिन आप 500,000 रुपया खर्च करके आप उसमें ऐड डाल के आप उसको किसी भी तरह शो कर सकते हैं, वो शायद टीवी एडवर्टाइजमेंट इस समय नहीं होता है। Yes. Anyone has comment on this
नेगेटिव रिव्यूज, नेगेटिव हम अपने एक बतला रहे हैं बाइंग लाइक मेरा एलईडी बल्ब का, हम एक बिहार में न्यूज है, कशिश न्यूज, अतुल सर शायद जानते होंगे कशिश न्यूज का। हम वहां पे गए थे तो वो क्या बोला था मेरे से, दिन में एक बार मिनिमम ऐड होता है 10 से 15 सेकंड का, और एक बार ऐड चलाते हैं तो उसका 800 रुपीज लेंगे। मतलब एक बार 10 सेकंड चलाए तो 800 रुपीज लेगा। तो दिन भर में मान लीजिए इस चीज का एलईडी का इंडिया टीवी पे तो हमेशा आते रहता है, तो उसका कितना करोड़ रुपया होगा एडवर्टाइजमेंट पे। तो मतलब उससे लगता है कि उसके पास उसका लोग प्रोडक्ट खरीद रहा है, पैसा आ रहा है, तब तो वो कर रहा है। लेकिन फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, इस पे क्या है कि लोग बजट वाले भी कोई भी ऐड डाल सकते हैं, तो उस पर ट्रस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है बहुत। ठीक है, ये तो एक साइड बोला तुमने। दूसरा साइड भी है इसका कि ट्रेडिशनल एड्स का प्रॉब्लम है कि इट्स लाइक शोन टू एवरीवन, तो देयर इज नो उसमें मैं बोलना डेमोग्राफिक। चाहूंगा विशाल कि वन इज ऑर्गेनिक ग्रोथ, कि आपके ब्रांड बनाए आपने, फेसबुक पे आपने कोई एड्स नहीं डाला, आपका जो कंटेंट है, जैसे हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे, वो लिंक्डइन वाले जो रिलायंस जियो वाले जो हैं, तो उनका कंटेंट इतना अच्छा है कि लोग शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हजारों फॉलोअर्स बन जाते हैं। और एक हो गया इनऑर्गेनिक, यानी कि आपने पेड एड्स, तो पेड के चलते यू माइट ग्रो वेरी फास्ट, बट द एंड ऑफ इट की ये सारे लोग दे विल आल्सो डिसअपीयर वेरी फास्ट, बिकॉज लॉयल्टी उतनी ज्यादा नहीं रहती है कि आपने पैसा खर्च करके ऐड के थ्रू आपने अपने ब्रांड के प्रति लोगों को अट्रैक्ट तो कर लिया, यू आर एबल टू अट्रैक्ट पीपल टू योर ब्रांड, बट टू रिटेन देम यू कांट कीप गिविंग देम द लॉयल्टी जो पेटीएम और बाकी लोग देते हैं, कि आप उनको टाइम टू टाइम लॉयल्टी के लिए इट हैज टू बेस्ड ऑन द बेसिक value which you are adding, your product and your service or whatever your brand you are there, तो उसका जो core value आप ऑफर नहीं करते हैं, तो ये आपका जो एडवर्टाइजिंग पेड एक्विजिशन ऑफ लॉयल्टी is not going to last. That's my view. Organic is always better if you can. Yes, Saurav, for your case, I think there can be few things. One is running an ad as such, then there is just a paid campaign to increase the viewership, right? So that's another way to do things. And let's say just leave it as it is, like organically grow होने। तो I don't know, like let's say some motivational speaker वीडियो है जो भी होता है वो ऑटोमेटिक वायरल हो जाता है, उसको कोई ऐड का जरूरत नहीं पड़ता। आई थिंक what's your take on this? I mean, like पैसा जो खर्च करना चाहिए, करना भी चाहिए कि नहीं, या क्या करना चाहिए, कितना करना चाहिए, मतलब फॉर द न्यू कमर्स स्पेशली? तो मेरा कहना है कि इफ यू कैन अफोर्ड, जब आपके पास एक मार्केटिंग बजट है, एवरीबॉडी, मार्केटिंग इज अ गुड थिंग, नथिंग रॉन्ग विद मार्केटिंग। सो मार्केटिंग का काम होता है टू लेट अदर्स, योर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स नो अबाउट यू, दैट यू एग्जिस्ट, अदरवाइज द वर्ल्ड इज वेरी क्राउडेड, देयर आर टू मेनी products, services, brands to choose from. So there is a Honda, there is a Toyota, there is a BMW, and there is a Tesla. तो नए नए cars आते रहेंगे, नए नए phones आते रहेंगे, dresses में भी है, food में भी, हर जगह पे competition is very very hard. So if you are a new player in the industry, or if a new player in that city, then you have to make your presence felt. So what everybody does, if you see कोई भी नया दुकान खोलता है तो क्या करता है, what they put is a signboard, a flyer, a banner. So this is like a display marketing, कि आपने एक बैनर लगा दिया तो आपकी दुकान खुल गई है, now running, now we are open. So that is also a type of marketing. Now that physical से ज़्यादा, चूंकि world is moving slowly from more of physical to more of digital, then the digital world, digital advertising is also becoming an important part of it. And वहाँ पे फेक न्यूज का जो है, या फेक एड्स का, कि परचेज्ड लाइक्स, परचेज्ड, तो वो थोड़ा सा long term में people find it out and your reputation goes down. This has happened with many presidents, many prime ministers, और जैसे कि अभी US हमारा जो president Donald Trump, he is a president because of his fake जो advertising था। तो इंडिया में भी होता है, बहुत सारे पॉलिटिशियन लोग फेक, मतलब कि लोगों ने डेटा खरीद लिया, सारे जितने भी लोगों का फोन नंबर है सबके पास अवेलेबल है, सब लोगों को कॉल्स कर रहे हैं, तो purchased loyalty
doesn't last long, whereas loyalty based on the value which you're adding to the world or that industry, that is slightly longer run. Short run में, yeah, you might want to put some small ads to know about you, and ongoing budget भी होगा. पेप्सी का भी बजट बड़ा है, कोका कोला का भी बजट बड़ा है. मैं कोई नया सोडा ला रहा हूँ, तो आपने देखा होगा कभी कभी यहाँ यूएस में ज्यादा पॉपुलर है कि बच्चे भी, स्कूल के बच्चे भी कुछ किसी कॉज के लिए, कुछ के लिए वो बैठ के सोडा बेचते हैं अपने चौराहे पे बैठ के. दे आर पुटिंग सम, तो उनके लिए एक तरह से ट्रेनिंग पीरियड है. दे आर लर्निंग हाउ टू सेल, दे आर लर्निंग हाउ टू डील. बट ऑनलाइन वर्ल्ड में नाउ इट्स वेरी इजी टू ट्रैक. अगर आपके जो कस्टमर्स हैं या आपके जो जिन्होंने आपको एक्वायर किया, अगर आपने फेक परचेज किया है, तो somebody will report it. अभी people find out things very fast, and once people know कि आपके ज्यादातर जो आपकी जो लॉयल्टी है, बड़े बड़े जो स्पीकर्स ही नहीं लीजिए जो फेमस हैं, रॉबिन शर्मा बहुत बड़ा सीवर है, बिंद्रा बहुत बड़ा सीवर है, बट ये पता चल जाएगा कि इनके ज्यादातर जो स्पीकर हैं, ऑडियंस है, वो सारे उनके पर बुलाए हुए हैं. ये काफी पॉपुलर है रिलीजन के फील्ड में. जो बड़े बड़े जो रिलीजियस लीडर्स होते हैं, वो ऑडियंस बुलाए होते हैं, उनके अपने ही लोग बैठे हुए ऑडियंस में बैठे हुए हैं, और ज्यादा लोग उन्हीं के लोग बैठे हुए, उन सबको खिलाया पिलाया हुआ है, जो भी उनको इंसेंटिव दिया, एंड दैट्स हाउ उनका हॉल थोड़ा भरा हुआ लगता है, एंड बाकी लोग ही आ जाते हैं. तो आई वुड से कि लॉयल्टी, ऑनेस्टी इज ऑलवेज बेटर इन द लॉन्ग रन. Okay, ठीक है Saurav, yes, what's your take on this? I mean, it's a trade-off, I think. So I don't agree with any of the panelists here. I'm in favor of fake likes, fake followers, fake audience. I'll tell you why. You are in favor? I'm in favor. Yes, I'm in favor. Okay. As a brand owner, I'm saying that okay. Yeah, this sure, does not mean कि मैं ये करता हूँ, but as a brand owner, मैं ये करना चाहता हूँ. I'll tell you why. सबसे पहले तो यार कोई डे 1 से बिंद्रा तो बना नहीं है, कोई डे 1 से मोदी बना नहीं है. मुझे डे 1 से 1 करोड़ जनता तो मुझे सुनेगी नहीं. सो आज के टाइम पे थोड़ा सा बैकग्राउंड चलते हैं. वील टेक 2 स्टेप्स बैक एंड वील अंडरस्टैंड कि आज कंज्यूमर बैठा कहाँ हुआ है. कंज्यूमर बैठा हुआ है घर पे. कंज्यूमर सुबह 8 बजे उठता है, बच्चे को स्कूल छोड़ता है, उसके बाद वो ऑफिस जाता है 8 घंटे के लिए. उस ऑफिस में वो टीवी नहीं देख रहा है, ही जस्ट हैज अ मोबाइल. So he's on internet, he's on social media. मोबाइल में सिर्फ सोशल मीडिया करता है और व्हाट्सएप करता है और कुछ नहीं करता है. Then he goes back home, थका हारा घर जाता है, वाइफ का खाना खाता है, और उसके बाद टीवी देखता है, थोड़ा सा अगेन घर पे रहा. He doesn't have time. मैं मंडे टू फ्राइडे का शेड्यूल बता रहा हूँ. So Monday to Friday he might watch TV for 1 hour, but for 8 hours he's on social media. So social media, any company doesn't have a choice but to invest heavily on marketing on social media. आज के टाइम पे I know many companies, many founders who are investing 100% money on Facebook. 100% marketing budget is going into Facebook. They are not putting any hoardings. They cannot afford TV ads. And the beauty about Facebook and all these social media platform is कि आप 10 रुपए का भी ad चला सकते हो यार. आप 10 रुपए का कहाँ से होर्डिंग लगाओगे और 10 रुपए का कहाँ पे टीवी में चलाओगे. So actually कोई ऑप्शन ही नहीं है उनके पास but to define their budget, define their territory and start the ad. And it can be started in 2 seconds. 2 सेकंड में आपका ad चालू हो जाएगा. वरना आप क्या होर्डिंग करोगे, कैसे करोगे? You have to meet people, you have to construct things. यहाँ पे आपने ग्राफिक डिजाइनर को एक इमेज बनवाया और आपने लगा दिया. Now, why I'm in favor of this is obviously क्योंकि आज के टाइम पे number of likes, number of followers brings credibility. मैं आज अगर 5 स्पीकर का ऑप्शन मिलेगा तो मैं उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स में जाऊंगा, देखूंगा किसके ज्यादा फॉलोअर्स हैं और मैं एक्चुअली उन्हीं को फॉलो करूंगा. मैं एक 100 फॉलोअर वाले को मैं फॉलो ही नहीं करूंगा क्योंकि मुझे लगेगा कि यार इसके तो फॉलोअर्स ही नहीं है, तो इसकी क्रेडिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होगी. हो सकता है उसका कंटेंट उससे ज्यादा अच्छा हो 1 लाख फॉलोअर वाले से. हो सकता है sorry to interrupt here. Whatever you're saying is only applicable for those whose products are in the online world. If somebody is selling something local, कोई चाय बेच रहा है, तो that person, that Facebook like and all, that might not be relevant. मैं local एक दुकान खोल रहा हूँ, किराना दुकान हो या चाय का दुकान हो. For me, that online. उसका कस्टमर फेसबुक में नहीं है. किराना की दुकान में कस्टमर मेरी मदर है और मेरी मदर will directly go to किराना स्टोर. She doesn't need to be there on Facebook and buy. बहुत सारे लोग कस्टमर, बहुत सारे जो कस्टमर है जो लोकल, मैं ऑनलाइन कस्टमर्स की बात कर रहा हूँ. हाँ, ऑनलाइन कस्टमर, हाँ
मैं ऑब्वियसली ऑनलाइन प्रोडक्ट डिजिटल वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ. माई मदर एंड माई फादर माइट नॉट बी ऑन द डिजिटल वर्ल्ड, सो वो डायरेक्टली ऑफलाइन ही सामान खरीदते हैं. सो एंड ये कस्टमर ऑडियंस खत्म होने वाली है. इट विल बिकम एक्सटिंक्ट. इनफैक्ट आई वाज अटेंडिंग अ सेमिनार, उसमें ये लिखा था कि अभी इंडिया में करीबन 400-500 मिलियन आर ऑन इंटरनेट, एंड इन नेक्स्ट 2 years 400 मिलियन और इंटरनेट में आने वाले हैं. तो बचे कितने? 400 मिलियन ही बचे हैं, और वो भी जियो के वजह से वो भी कवर अप हो जाएगा. तो सब कुछ ऑनलाइन आ जाएगा. तो इवेंचुअली एवरी प्रोडक्ट इज कमिंग ऑनलाइन. तो जो आपने किराना पॉइंट भी बोला, ये जो अभी अगर आपने अंबानी का वीडियो देखा है, तो ये सब कुछ किराना को भी ऑनलाइन ले आएंगे. ये अमेज़न, अलीबाबा, पेटीएम और ये जितने भी बड़े बिजनेस हाउसेस हैं, इस दुनिया में हर चीज अब ऑनलाइन ही होने वाला है विद टाइम. So the point was the customer segment, what you are saying, that will become extinct and they will also come into online. Correct. ठीक है. तो इसमें फिर so you're saying कि वो credibility build करेगा if they see more followers. हाँ, तो मुझे यार देखो, अगर मैं एक फाउंडर हूँ एंड आई वांट टू बी फेमस, पहले तो मुझे फेक लाइक्स खरीदने पड़ेंगे या फेक फॉलोअर्स खरीदने पड़ेंगे. जब मेरे 10,000 फॉलोअर्स हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली फिर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा. पहले 10,000 तो मुझे खरीदने पड़ेंगे, उसके बाद एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा, और फिर 10,000 से 1 लाख जाने में मुझे सिर्फ 4 दिन लगेंगे. लेकिन 1 से 10,000 जाने में मुझे बहुत मेहनत लगेगा इफ वी चूज द राइट वे. अगर हम सही रास्ता चुने तो मुझे भाई जन्म लग जाएगा, तब तक तो मेरा कंपटीशन आ जाएगा और वो मुझे खरीद लेगा लाइक्स. हाँ, वो लाइक्स खरीद लेगा. तो यार एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, यू हैव टू सर्वाइव, एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है. तो आई एम इन फॉर फिटेस्ट भी नहीं है, दिखावा वाला लाइफ है. आई थिंक जो दिखाओगे वो दिखेगा. दिखावा वाला लाइफ. यस अतुल सर, आप कुछ काउंटर कमेंट्स करना चाहेंगे? देन विल क्लोज टुडे. मैं ये कहूंगा, आपने जो बोला ना कि दिखावा वाला जो है ना, वो फेक लाइक्स, फेक ब्रांड, फेक पीपल, तो आपको कुछ दिन में आपको फेमस बना देगा. आपको आज 10,000 लाइक हो गया, कल को मिलियन लाइक हो जाएंगे, बट वो मिलियन के बाद जीरो होने में ज्यादा टाइम लगेगा, पता चलेगा नहीं ये तो फेक था या नकली था. लास्टिंग नहीं होता है, मेरा ऐसा मानना है. तो जो जेन्युइन, और एक दो चीजें, एक तो ऑनलाइन वर्ल्ड में भी जो प्रसिद्धि है वो शॉर्ट टर्म है. आज यू आर द माइकल जैक्सन, टुमारो देयर इज मैडोना, एंड देन देयर इज नाउ. आवाज ब्रेक हो रहा है. मेरा ये कहना है कि ये जो फेक वर्ल्ड है ना, इज फेक, इज नॉट लास्टिंग. तो आप बहुत जल्दी you can go from 0 to 1,000 and 1,000 to million by purchasing likes, but tomorrow once a better brand comes in or somebody else comes in, a genuine, तो वो आपको बहुत easily overtake कर लेगा. You won't last for long. And on the other thing on the local thing is कि the digital divide आज भी है world में. There are more than 7 billion people, almost 8 billion people, but still only 2.5 billion have internet. So what about the other 6 billion? The other 6 billion people will still remain on those local kirana store. And the other thing, elite segment है, और मैं elite segment की बात कर रहा हूँ. तो जैसे हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे कभी जाते हैं, तो वी ट्राई टू मेक श्योर कि हमें स्टारबक्स में नहीं पीना है, हमें कोई भी बड़े ब्रांड जो फेमस जो चेन उनको नहीं करना. वी वांट टू बाय लोकल. वहाँ के किसी ने कोई कॉफी शॉप खोला है, तो यू वांट टू ट्राई दैट आउट. मेनी पीपल आर ट्राइंग दैट. मेनी पीपल आल्सो गोइंग ट्राइंग टू यूज कि फार्मर्स मार्केट यहाँ भी चलता है, इंडिया में भी अलग अलग नाम से चलता है, कि हम फार्मर्स मार्केट में जाकर वहाँ का लोकल उगाया हुआ, वहाँ का लोकल सब्जी हो, फल हो, वी वांट टू बाय दैट. So that's another big market emerging. People want to buy local things, local made, local grown thing. So that's another big competition or disruption for the big brand. People say, no, I don't want to go this big. So I don't want to buy Gap. I don't want to buy Apple. I want to. No, Apple. कुछ technology में तो I need lot of investment, तो नहीं चलेगा. तो जो भी छोटी चीजें हैं, मतलब कि सब्जी या आपके घर को सजाने के लिए छोटी मोटी जो चीज लोग लाते हैं, पेंटिंग में लाते हैं, तो people are willing to pay extra to the local and customized homemade products. That's my experience. Okay. Yes, Saurav. Last comment. कुछ anything on this? I think this can मैं बस अतुल जी को काउंटर करूंगा. देखिए अतुल जी, आपने बिल्कुल सही बोला. अगर बंदे में दम ही नहीं है तो ऑब्वियसली वो 1 मिलियन फॉलोअर्स के बाद 0 पे आ ही जाएगा. माई अजम्पशन इज कि जिसमें दम है वही सर्वाइव करेगा. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट तो है ही, मतलब उसको इनहेरेंट टैलेंट तो होना ही चाहिए. पर जितने लोग भी ऊपर बढ़े हैं, दे नीड सम पुश. वो पुश है, बस लॉन्च पैड चाहिए. अगर उसमें दम नहीं है तो वो गिर जाएगा यार. सिंपल सी बात है, चंद्रयान बे ऑफ बंगाल में गिर जाएगा. पर अगर उसको थोड़ा सा
आप एस्केप वेलोसिटी देंगे, हेल्प करेगा तो फिर वो ऊपर जाएगा। दम तो होना चाहिए बंदे में। आपने अच्छा एग्जांपल दे दिया। चंद्रयान जो है ना एस्केप वेलोसिटी, तो राहुल गांधी बीइंग द फेक लाइक्स वाला है, और जो चंद्रयान जो है रियल वाला है। इसरो ने बनाया, इसरो का जो बजट है जो मूवी बनाने में, जो हॉलीवुड की मूवी बनाने में जो लगा, जो स्पेस वाला मूवी, और उससे बहुत कम पैसे में चंद्रयान इंडिया ने भेज दिया। तो मैं चंद्रयान की बात कर रहा हूँ कि वो असली वाला है। और जो हॉलीवुड की जो मूवीज बनी है कि मार्स पे जा रहे हैं, क्या नाम, बहुत सारी मूवीज बनी है, तो वो आप फेक ब्रांड वाली वो। ठीक है, आई थिंक डिस्कशन एंड करते हैं। बट एक चीज मैं बोलूंगा इसमें कि फेकनेस और ऑनेस्टी, इसका ऑडिट कितने लोग करेंगे 7 बिलियन लोगों में, दैट इज अ बिगर क्वेश्चन, सो वी शुड थिंक अबाउट दैट आल्सो। ठीक है, so अतुल सर आपने बहुत स्टडी किया, चलो आपको पता चल गया ये है वो है, बट बहुत सारे लोग हैं आई थिंक 7 बिलियन में, and I don't know, like more than half the people maybe who will not audit so much, will just follow. And I think that's 99%, 99% whatever, I mean, whatever is the percentage, it's a huge percentage, and that's I the agree with you. I problem agree we are with seeing you. actually in the world. Majority won't People audit. follow. Yes, sir. One sentence I want to add. Yes, Vinith. Vinith speaking from Pune. Yeah. That I am enjoying this discussion, not specifically, but I am enjoying a lot. Thank you. I am gaining very precious knowledge also. Thank you. So ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ सब लोग ऑनेस्ट हो जाते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे फेकनेस नहीं है। विशाल जी कुछ, विशाल जी आई नीड सम फॉलोअर्स नाउ एज एन इंसेंटिव। Sure. तो I think आपके लिए people, सौरभ if जी you come इस every group- day, you will इस develop group- followers. नहीं, और एक चीज मैं ऐड करना सौरभ जी के लिए कि all followers not the same. There are some powerful followers. तो विशाल जी आपको फॉलो करते हैं, तो विशाल जी के जितने फॉलोअर्स हैं वो आपको फॉलो करेंगे, and that is the beauty is यार इस ग्रुप के लोग आपको फॉलो करेंगे once you share something on the group. So that's another way to also benefit. Correct. Thank you, sir. ठीक है, चलिए, thank you very much for today. Tomorrow's topic I have thought it to be more on the present scenario, कि what after 17th May. Yeah, so we all should prepare. Again a lockdown. Think about कि हम लोग क्या सजेशन दे सकते हैं गवर्नमेंट को 17 तारीख के बाद क्या करें वो, ठीक है, थोड़ा सा इस पे भी बात करना बहुत जरूरी है आई थिंक. Although you know we are more on the business, but I think business are getting affected a lot because of this lockdown TikTok game. ठीक है, तो या tomorrow's का ये रहेगा, कल का ये रहेगा, 17 तारीख के बाद क्या, ठीक है. So I'll put it in the group. And I think we'll do the social media wala, we'll do one more session later on more focused social media platforms. Okay. Thank you very much for your time. Thanks, Vishal. Thanks, Vishal. Thanks, everyone.